Namaste Gurukulians, how are you? Beta, I hope you are fit and fine. Beta, today I will start the chapter number 2 of error. Chapter number 2, name error. Error. Okay, chapter number 2, error as per NCERT. Okay. Beta, what do you mean by error? You know, error means in Hindi त्रुटि, कमियाँ, खामियाँ. Beta, when we do some measurements, when we measure something, then beta, you know, there will take place some mistakes. These mistakes are generally known as error in physics, and I will tell you what types of errors occur in measurements and how they can be removed. Okay, now your chapter name is error, and first topic is also, it is obvious, error. एरर. बेटा, व्हाट इज एरर? मान लेते हैं किसी मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू है बेटा 6 यूनिट. ओके, 6 यूनिट. लेकिन मैंने जब उसको मेजर किया, मैंने जब मेजरमेंट किया, अपने तरीके से मेजरमेंट किया, तो उसकी जो वैल्यू है वो 6 की बजाय आ गई 6.2. इट मीन्स एरर, मिस्टेक कितनी हुई? मिस्टेक हुई 0.2. मिस्टेक हो गई ना. ओके, नाउ बेटा लिसन, आई विल एक्सप्लेन यू मोर बेटा. तो एरर क्या होता है, पहले लिसन. एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity. Okay, true value and measured value. Now what will be error? True value of physical quantity minus measured value. This is called error. Now I told you, suppose actual value is 6. I told you now actual value of a physical quantity is 6 units, and I measure it as 6.2. Then what will be error? True value is 6 and measured value is 6.2. बच्चे, गलतियाँ तो हमसे होंगी ना. एक्चुअल वैल्यू कुछ और आएगी, और हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो वैल्यू उसके तहत जो वैल्यू है वो कुछ और आएगी. तो 6 is the true value and 6.2 is the measured value. Then what will be error? 6 minus 6.2, it will be minus 0.2 units will be the error. हमारे पास जो error आएगा वो कितना आएगा बेटा? 6 minus 6.2, it will be minus 0.2. Okay, fine. I will tell you about it. I will explain you this later. Now beta listen. You know beta, what types of error can occur? Beta, error is the difference between true value and the measured value. Now beta, what types of error we commit, we face? What type of error? Now I will explain. Okay, now beta, types of errors. Types of errors. Types of errors. Beta, there are some types of errors, and I will brief you about 3 types of errors, 3 main type of error. Okay, so first one is systematic error. Systematic error. Beta, what do you mean by systematic error? Naam is system. System means, I will tell you, system means in one direction. Listen beta, suppose the actual value of a physical quantity is 6 units. Okay, unit mean if you are measuring length, then 6 meter. If you are measuring mass, 6 kilogram. Units means it is of any physical quantity. Okay, so listen, actual value of physical quantity is 6 units, and you takes 10 measurements. 10 times you measure the value. Every time the measured value is greater than the actual value. Every time
10 टाइम्स, और या फिर 10 की 10 बार द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू। या तो हर बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है या हर बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आए, देन द एरर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। Okay, now types of errors. First type is systematic error. What you will write here? You will write that these error, this error, these error takes place in one direction. Okay, in one direction. आप इसमें ये भी लिख सकते हैं either measured value is more than actual value all times। जितनी बार भी मेजरमेंट करोगे मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑल टाइम्स, और measured value is always less than actual value। ओके, या तो हर बार जो measured value है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा ज़्यादा है, या हर बार जो measured value है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है बेटा, कम आए। देन वी विल से दैट दिस इज ऑफ systematic errors। Okay, the error takes place is always called systematic error because every time measured value is greater than or every time the measured value is less than the actual value. This means error is in single direction, either more than either less than। Okay, final, this is the types of errors. First is systematic error in one direction। Okay, now फर्दर सिस्टमैटिक एरर हैज सम टाइप्स। ओके, तो बच्चे हमारे टॉपिक का नाम क्या था, एरर। इट हैज 3 टाइप्स। आई विल डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रोज एरर, 3 टाइप्स। बट बेटा सिस्टमैटिक एरर आई हैव टोल्ड यू इन वन डायरेक्शन, फर्दर इट हैज some parts, some types। I will tell you now further types of systematic error। अभी बेटा मैं दूसरे पार्ट्स पे नहीं आया हूँ, रैंडम एरर पे या ग्रोज एरर पे मैं नहीं आया हूँ। नाउ फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इसके अपने भी पार्ट होते हैं। लिसन नाउ, टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ एरर्स, फर्स्ट इज दिस, नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नाउ दिस इज वन। Now types of systematic error I will represent by A, B, C, D. Further I will discuss about the second part of error, random error. Then I will tell you about third part of error, gross error. Okay. Now types of systematic error. Types of systematic error. Beta listen. Types of सिस्टमैटिक एरर्स। बेटा लिसन, अभी आपने पढ़ा कि सिस्टमैटिक एरर एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, तो उनको अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस केस में अलग अलग होता है। हमने उनके 4 पार्ट अलग अलग बना लिए। लिसन, सिस्टमैटिक एरर, टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ए पार्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ए पार्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। बेटा एक बात बता दूं, इसके मैं आपको 4 पार्ट बताऊंगा, 4 पार्ट्स, और 4 के 4 पार्ट्स में बेटा एरर एक ही डायरेक्शन में होगा ना, बिकॉज दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सो फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं आपको 4 अलग अलग वे बताऊंगा कि किस किस में एक ही डायरेक्शन में एरर होता है। ओके, नाउ लिसन, इंस्ट्रूमेंटल एरर। बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर की एक छोटी सी बात लिखिए, एक लाइन जो लिखने की है, दीज एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन measuring instrument, right? These errors
these errors are introduced due to defect in measuring instrument. लिसन बेटा, ध्यान से देखना मेरी बात। बेटा मान लेते हैं मीटर बनाने वाली कोई कंपनी है जो मीटर बनाती है, उसने मीटर को गलती से ऐसे किया, उसने मीटर को 99 सेंटीमीटर बना दिया, यानी कि मीटर की जो लेंथ है वो एक्चुअल में वो मीटर ने ली, वो 99 सेंटीमीटर तक ले ली सपोज। ओके, गलती से बन गई, डिफेक्ट हो गया कि ऐसा कि 1 सेंटीमीटर उन्होंने कमी डाल दी, कमी आ गई। ओके बेटा, नाउ लिसन, व्हेन यू विल मेजर 1 मीटर लेंथ देन देयर विल बी एरर of, tell me of 1 centimeter error will be there, because actual value is, suppose actual value is, now suppose this is the length of meter, the actual length of meter should be 1 meter, but it is of suppose 99 centimeter as manufactured by the company. Now beta listen, what will happen when we will measure the cloth, okay, of 1 meter length, when I will measure the cloth, then beta listen, what will happen, मुझे तो ये लगेगा ना कि कपड़े की लेंथ 1 मीटर है, मुझे तो ये लगेगा ना कि मैंने तो 1 मीटर को रख के जो कपड़े को मैंने मेजर किया, तो मुझे लगेगा कि जो कपड़े की लेंथ है वो 1 मीटर है, बट जो एक्चुअल वैल्यू है ना कपड़े की वो कितनी होगी, 99 सेंटीमीटर, बट मेजर वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अरे मैंने तो 1 मीटर से मापा है, मेरे लिए तो 1 मीटर है, मेरे लिए तो वो 100 सेंटीमीटर है ना, तो मुझे तो ऐसे लगेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 99 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, एरर आ गया। सुनिए बात, ये तो बात हुई 1 मीटर की। अब अगर मैं 2 मीटर मापूंगा तो भी यही डिफरेंस आएगा, तो आपका 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। 3 मीटर में अगर मापता हूं तो 3 सेंटीमीटर डिफरेंस आ जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हैं, लिसन, actual value of cloth is 99 centimeter, real value is observed value is 100 centimeter, then error is -1. Actual value is 99 centimeter, measured value is 100 centimeter, then error is equal to actual value minus real value, it is equal to -1. When I will measure the cloth by 2 meter by taking double of the length, then actual value will be 198 centimeter, but observed value is 200 centimeter. ओके फाइनल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि एरर जो है ना वो एक्चुअली इन द सेम डायरेक्शन आएगा। इन दिस केस द एक्चुअल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द मेजर्ड वैल्यू। हमको ऐसा लगेगा कि हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से क्या आएगी, आपकी कम आएगी। चाहे आप 1 मीटर कपड़ा मापें, चाहे 2 मीटर, चाहे आप एक कपड़ा, जब तक कपड़ा मापेंगे आप, जब तक कपड़ा मापेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो हमेशा जो है वो मेजर्ड वैल्यू से क्या है, कम है। आपको ऐसा पता लगेगा, आपको जो आपका जो एरर होगा ना हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। So instrumental error, only you have to write that these errors are introduced due to defect in measuring instrument. ओके तो डिफेक्ट किस में था, इंस्ट्रूमेंट में था, मीटर में था, मेरे में कोई भी डिफेक्ट नहीं था। तो ये जो डिफेक्ट आया वो किसकी वजह से आया बेटा, डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया। सो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई एम टेलिंग ओनली एग्जांपल, यू हैव टू नोट, यू राइट ओनली दिस। ओके नाउ बेटा हाउ दिस कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। अब बेटा मैं इंस्ट्रूमेंट को चेक करता हूँ, मैं उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट से, जो प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको मैं मापता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें 1 सेंटीमीटर की क्या है, गड़बड़ी है, मुझे पता चल जाएगा। बस फिर मैं क्या करूँगा, जब भी मैं मेजरमेंट करूँगा ना तो मैं क्या करूँगा, अपनी ऑब्जर्व वैल्यू में से 1 को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। देखो मैंने अब क्या किया, अब मुझे पता चल गया यार गड़बड़ी कहाँ हो रही है, तो मैं उस मीटर को क्या करूँगा, एक प्रॉपर किसी और मीटर से मापूंगा, मुझे पता चल गया मेरी 1 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। तो अब मैं हमेशा क्या करूंगा, मेजर्ड वैल्यू में से हमेशा मैं 1 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये मुझे पता है। अच्छा अगर मैं 2 मीटर कपड़ा मापूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं 2 को माइनस कर दूंगा। ओके बिकॉज अगर मैं डबल लेंथ लेता हूँ, डबल लेंथ, देन इट विल बी 198 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू इज 198 बट रियल वैल्यू इज 200। ओके मैं क्या करूंगा,
और मेजर वे से 2 को माइनस कर लूँगा, मुझे तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना, तो दिस इज़ 198। तो ये ऐसा करके मैं अपने एरर को कम कर सकता हूँ, अपनी गलती सुधार सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, ओनली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके बेटा, ना बेटा सेकेंड पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर, imperfection, B part, imperfection in experimental technique. Experimental technique, only you have to write the small definition of it. These errors are due to improper experimental arrangements. बेटा एग्जाम्पल सुनिए, मान लेते हैं मैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई मेजरमेंट कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, एक गैस है उसके ऊपर मैं जो है काम कर रहा हूँ, एक कंटेनर में गैस है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है। बेटा आपको पता है, अगर उस कंटेनर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हुआ या उस गैस का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हुआ तो गैस जो है वो थोड़ा थोड़ा उसमें से अपनी हीट को लॉस करना शुरू कर देगी। बिकॉज रूल है एक कि अगर सपोज किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा है तो वो हीट फ्लो करना शुरू हो जाती है फ्रॉम दैट बॉडी टू द एनवायरनमेंट। ओके, हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं उस हीट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता, प्रॉपरली रोक के नहीं रख सकता, तो मेरी अंदर टेम्परेचर की वैल्यूज में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा ना। ओके, सपोज मैं किसी कंटेनर के अंदर गैस है, मैं उसके ऊपर कोई मेजरमेंट कर रहा हूँ, टेम्परेचर माप रहा हूँ, प्रेशर माप रहा हूँ, और वहाँ से तो टेम्परेचर लीक हो रहा है बाहर, उसको मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो लीक हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब है जो चेंज आएगा ना मेजर वैल्यू में वो ट्रू वैल्यू हो ही नहीं सकती बेटा। डिफरेंस विल बी देयर बिकॉज हीट इज कंटिन्यूसली लीविंग द सिस्टम। इट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में मैं उस हीट को रोक नहीं पा रहा हूँ जाने से, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने अरेंजमेंट अच्छे से नहीं किया, मैंने ऐसी कोटिंग नहीं की चारों तरफ कि जो हीट को बाहर जाने से रोक सके। तो जो चेंज आएगा ना वो कन्फर्म इन द सेम डायरेक्शन आएगा। सो दिस इज द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कहीं ना कहीं मेरी टेक्निक में क्या है बच्चे, कमी है। ओके बेटा, only you have to listen the example or you can write by yourself, but you have to write only these A, B and C. Now C part is beta, C part is personal error. बेटा what do you mean by personal error? personal means अब इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा हद तक गलती रहेगी। ठीक है बेटा, देखें पर्सनल एरर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज अ लेंथ एंड आई वॉन्ट टू मेजर द लेंथ बाय अ मीटर स्केल। सपोज ओके, सपोज आई कीप अ मीटर स्केल हेयर इन द अबव। सपोज 1 minute बेटा, आई कीप द इन दिस वे, आई एम मेजरिंग द लेंथ। लेकिन सपोज करो मेरी जो आदत है ना देखने की, मेरी जो मैं इसको देखता हूँ ऐसे देखता हूँ, मेरी आँख कुछ ऐसे है कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ऐसे। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करेगा बेटा। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड तभी करेगा अगर मैं बिल्कुल सीधा देखता हूँ 90 डिग्री पे ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा ना, मेरी आदत ऐसे देखने की हैबिट है, तो क्या होगा बेटा, देखिए तो ये वाला पॉइंट वो यहाँ पे कोइंसाइड करेगा ऐसे देखने से, तो एरर आ जाएगा। ओके, और ये एरर एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि मेरी जो हैबिट है वो तो मेरी एक ही डायरेक्शन में है ना, इस तरह से। तो जो एरर आएगा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पर्सनल एरर आप कैसे लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू lack in proper setting
proper settings or personal habits। हमारी जो देखने की बात है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, एक आदत होती है, उसके तहत जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में आएगा। लिसन लिसन, मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ, तो हमेशा जो पॉइंट है वो मुझे ये पॉइंट यहाँ दिखना चाहिए ना, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको माप रहा हूँ तो मापते हुए ये वाला पॉइंट फाइनल में यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जो चेंज है वो कहाँ पर होगा बेटा? सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, सो दिस इज द पर्सनल एरर। फाइनल। नाउ बेटा लास्ट डी पार्ट इज error due to external causes। लिसन बेटा, लिसन, मान लेते हैं मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। सपोज मैंने ये देखना है कि सिंपल पेंडुलम जो है एक धागे के साथ आपने पत्थर को बांध दिया और आपने इसको ऐसे छोड़ा और वो ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ गया। ओके, मैंने इसको देखा। आई हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम यूजिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके, और यू कैन से सिंपली सपोज मैंने किसी पत्थर को यहाँ से छोड़ना है और वो अर्थ पे गिरेगा। आई हैव टू ड्रॉप द स्टोन फ्रॉम हाइट 2 मीटर। I have to drop the stone from the height 2 meter and it will fall on the ground। Suppose बेटा you know, जो आप टाइम मेजर करोगे ना, टाइम वो कितने टाइम में नीचे गिरेगा, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एयर भी तो है बीच में, एयर भी तो है बीच में, तो एयर उसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ओके, अगर एयर ना होती तो वो पत्थर जल्दी गिर जाता। एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पत्थर जल्दी नहीं गिरेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ओके, मेरी एक बात गौर से सुनिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज इन एग्जाम क्वेश्चन आया, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 2 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल ऑन द ग्राउंड। लेकिन अब इसको सोल्व करेंगे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे आप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड। आप बिल्कुल सही वैल्यू पुट कर रहे हो, लेकिन मेजर में जो टाइम का आंसर है वो आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा एक्सेलरेशन तब होता है जब एयर नहीं होती। तो आंसर हम जब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे तो टाइम कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और अगर एयर नहीं होती तो एक्सेलरेशन कितना होता बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब जो टाइम आएगा आपका कम आएगा, पत्थर को कम टाइम लगेगा, एयर तो है नहीं, लेकिन अब एयर है तो अब एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। सो जो टाइम विल बी ग्रेटर, आपका जो टाइम आएगा बेटा वो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ओके, टाइम विल बी ग्रेटर। तो बेटा एक बात है, यहाँ से फेंके, यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े, यहाँ से छोड़े, हमेशा टाइम क्या आएगा? एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगा। बार बार एक्सपेरिमेंट कर लें, एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार कर लें, तो हमेशा जो मेजर टाइम है वो एक्चुअल टाइम से क्या आएगा बेटा? ज़्यादा आएगा। और एक्चुअल हम किसको मान रहे हैं? आइडियल केस को, जिसमें हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना बेटा, आपको दिया गया होगा कि एक पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर की हाइट से फेंका, टाइम निकालने क्या है? जो ट्रू वैल्यू होती है ना, ट्रू वैल्यू, टाइम कितना लगेगा नीचे आने में? ट्रू वैल्यू हमेशा फॉर्मूले से आता है, और फॉर्मूले में आप एक्सेलरेशन को क्या पुट करते हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले में आप एक्सेलरेशन को क्या पुट करते हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट बेटा एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, टाइम जो है वो आपका ज़्यादा आ जाएगा। ओके, सो चेंज विल बी इन द सेम डायरेक्शन। सो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज यू विल राइट हियर दीज एरर आर ड्यू टू external causes like air,
विंड, टेम्परेचर, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर। एक्सटर्नल कॉजेज, दीज एरर्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज लाइक एयर प्रेजेंट, विंड, ओके, लाइक टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, स्पॉट टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, टेम्परेचर कम, हवा चल पड़ी, ओके, सो दिस इज द ओके एक्सटर्नल कॉजेज, ओके फाइन। ना बेटा लिसन, दिस इज द सिस्टमेटिक एरर। इसके हमारे अगले 4 पार्ट थे, A B C D, एंड इन ऑल द पार्ट्स डायरेक्शन ऑफ एरर इज ऑलवेज इन द सेम। या तो हमेशा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आएगी, या फिर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कम आएगी। इन सभी केसेज में ऐसा होने वाला है, ओके फाइनल। नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरर इज रैंडम एरर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरर इज रैंडम एरर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरर इज बेटा रैंडम एरर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एरर? नाम से लग रहा है रैंडम एरर। सेकंड पार्ट, बेटा रैंडम एरर क्या है? रैंडम, रैंडम मीन्स इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है बेटा। रैंडम कुछ भी हो सकता है। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकती है और मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से कम भी हो सकती है, ओके। बेटा आपको एक बात बताता हूँ, लिसन। ये दो, देखो इसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। चांस एरर, and it is not one directional, it is bidirectional. It can be bidirectional. तो यानी कि मेजर्ड वैल्यू एक ही मेजरमेंट में एक बार तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ सकती है और अगली मेजरमेंट में मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आ सकती है। मतलब इट कैन हैपन, बोथ कैन हैपन इन द सेम मेजरमेंट्स, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, रैंडम एरर के 2 कॉज हो सकते हैं, बस इसके 2 कॉजेज हैं। पहला कॉज तो है लैक इन अटेंटिवनेस। जो काम कर रहा है उसकी अटेंटिवनेस कितनी है, वो कितनी शार्प तरीके से मेजरमेंट ले पा रहा है। बेटा लिसन वन थिंग, आप कोई मीटर स्केल से आपको रीडिंग माप रहे हैं, एग्जैक्ट रीडिंग माप रहे हैं। बेटा आपको पता है आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं ले सकते बेटा, कभी भी, क्योंकि हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर इतनी नहीं है कि वो छोटे छोटे पॉइंटों को डिटरमाइन कर पाए। यानी कि आपको पता है 1 मीटर का 100वां हिस्सा क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। आगे 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा क्या होता है? 1 मिलीमीटर। और छोटा और छोटा और छोटा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी आंख 2 पॉइंट्स को अलग अलग ही नहीं कर पाएगी। हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर बचे इतनी नहीं है कि वो छोटी छोटी मेजरमेंट्स को आसानी से ले पाए, ओके। तो बेटा रैंडम एरर क्या होता है कि, और चलो हमारी आंख सही देख भी ले, फिर भी थोड़ी अटेंटिवनेस चाहिए माइंड को कंसंट्रेट करने की कि मैं कितनी अच्छे से वैल्यू ले पा रहा हूँ। थोड़ा इधर भी हो सकती है वैल्यू, थोड़ी इधर भी हो सकती है, वो तो दोनों तरफ हो सकती है, दोनों तरफ सेम ही बात है। दिस मीन्स रैंडम एरर कैन अकर इन बोथ द डायरेक्शंस। It is also called the chance error. So it has 2 causes. One is personal attentiveness, and second reason is change in external factors. जैसे कि बेटा सपोज टेम्परेचर अब था 30 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद हो गया 31, थोड़ी देर बाद हो गया 31, थोड़ी देर बाद होगा 29। हमको क्या पता चलेगा? हमको नहीं पता चलेगा। तो एक्सटर्नल कॉजेज से भी रैंडम एरर हो जाता है और पर्सनल अटेंटिवनेस से भी रैंडम एरर हो जाता है। These are the 2 causes of the random errors. Okay, so you have to write only this. It is also called chance error. It can be bidirectional. Okay, and listen, beta. One thing, it's very important, beta. Random error has 2 causes. One cause is tell me personal attentiveness, and second cause is change in external temperature, change in external प्रेशर, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जिससे कि वैल्यू चेंज हो जाती है, ओके।
नाउ अब आप एक बात कहेंगे, सर एक बात बताइए, रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है? रैंडम एरर को रिड्यूस करने का, कम करने का, हम चाहते हैं एरर कम होना चाहिए, एक तरीका है बस, एक ही तरीका, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करें, एक ही मेजरमेंट को बार बार देखें। एक बार वैल्यू आएगी 5.1 मीटर, एक बार वैल्यू आएगी 5.2 मीटर, एक बार वैल्यू आएगी 5.15 मीटर, एक बार वैल्यू आएगी कुछ और, ऐसे बहुत सारी मेजरमेंट हो गई। मैंने 10 मेजरमेंट ले ली, सबका एवरेज ले लीजिए। ओके, सबका एवरेज ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसका एवरेज लेके हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने एरर को क्या कर लिया, कम कर, यानी कि एक ही मेजरमेंट को हम काफ़ी बार करके उनका एवरेज ले लें तो हम काफ़ी हद तक एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ओके, ओनली दिस इज द सिंपल मेथड टू रिड्यूस द रैंडम एरर। ओके, एंड सिस्टमैटिक एरर में क्या था बेटा? सिस्टमैटिक एरर में मैंने को 4 पार्ट बताए थे। फर्स्ट वाज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, उसमें मैं उसको कम कर सकता हूँ किसी और इंस्ट्रूमेंट से, उसको माप के उसके आई कैन रिड्यूस द वैल्यू और इंक्रीज द वैल्यू, आई टोल्ड यू। सेकंड वाज इन इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जब गैस बाहर जा रही थी मैं गैस को रोक भी सकता हूँ। थर्ड वाज पर्सनल एरर, हैबिट, मैं आपको बता रहा था, उस हैबिट को मैं सुधार भी सकता हूँ। ओके, उसके बाद था आई वॉन्ट टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फॉलिंग बॉडी, एक्सटर्नल कॉजेज, एयर वाला, उसमें मैं एयर को निकाल भी सकता हूँ, मैं वो एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में भी कर सकता हूँ। सो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड, और वो प्रॉपर मेथड है, उनको आसानी से मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक ही मेथड है, यू हैव टू डू मेजरमेंट्स मैनी टाइम्स, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो सही ना आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बट प्रॉपर वे इज टू डू द मेजरमेंट्स मैनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, मीन्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स, इफ़ यू डू द एक्सपेरिमेंट्स एज लॉन्ग एज टाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू। जितनी ज़्यादा बार लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दिस इज द रैंडम एरर। ओके, नाउ बेटा थर्ड लास्ट इज ग्रोज एरर। बेटा लिसन, ग्रोज एरर इज सिंपली द एरर ड्यू टू पर्सनल केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। बेटा लिसन, मुझे टीचर ने धक्के से बिठा दिया, करो ये मेजरमेंट करो। बेटा जब मेरा मन ही नहीं है करने का, मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर आ जाएगी, एरर आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही रीजन है इसका, क्या? ड्यू टू पर्सनल केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो केयरफुल नहीं है, वो अपनी केयरलेसनेस दिखा रहा है, उसका मन ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, तो वहाँ पे जो एरर आएगा दिस इज कॉल्ड द ग्रोज एरर। एंड बेटा लिसन वन थिंग, दिस एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली वन फैक्ट इज देयर, द ऑब्जर्वर शुड बी अटेंटिवफुल। ऑब्जर्वर शुड बी अटेंटिवफुल। लेकिन बेटा जितना मर्जी अटेंटिवफुल हो जाए, रैंडम एरर तो आना ही आना है, रैंडम एरर तो आना ही आना है। सिस्टमैटिक एरर है, आप जितना मर्जी अटेंटिव हो जाए, सिस्टमैटिक एरर में आप कुछ भी कर लें, फिर भी रैंडम एरर विल टेक प्लेस। आप जैसे सिस्टमैटिक एरर में आपने पढ़ा इंस्ट्रूमेंटल एरर, कुछ भी कर लें, इंस्ट्रूमेंटल आपने वैल्यू घटा दी, बढ़ा दी, कुछ भी कर दी, बेटा रैंडम एरर एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा मेजरमेंट में रहेगा ही रहेगा। अब मेरी बात बेटा एक बात गौर से सुनेंगे, लास्ट बात आपको बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर में पढ़ा आपने कि इंस्ट्रूमेंट में सॉल्यूशन, इसकी लेंथ मैंने माप ली थी, मैंने ये रोड इसके ऊपर रख ली, ये इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर आना चाहिए। ओके फाइनल। इंस्ट्रूमेंट एरर में मैंने बताया था कि सपोज दिस द मीटर स्केल, ओके, एंड कंपनी ने क्या किया, इसको गलती से 99 सेंटीमीटर का बना दिया। मैंने आपको ये कहा था ना, हम क्या करेंगे 99 सेंटीमीटर में आपके 1 सेंटीमीटर घटा बढ़ा देंगे, मैंने आपको ये बात कही थी ना बेटा। कुछ फिर आपने, चलो ठीक है, आपने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू इज 99 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू इज 100 सेंटीमीटर, एरर इज -1, तो आप क्या करेंगे, मेजर्ड में से 1 को माइनस कर देंगे, मैंने आपको बताया था। लेकिन 1 को माइनस करने से बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर तो खत्म हो गया, बट रैंडम एरर तो फिर भी रहेगा ना बच्चे।
रैंडम एरर तो हमेशा लास्ट तक रहेगा ही रहेगा। तो इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, वी विल ओनली स्टडी अबाउट द रैंडम एरर. It is the main, because it will be there. If you reduce any type of error, this is the error which always be there in the measurement. ये तो रहेगा. अब सपोज कीजिए, सपोज मैंने आपको कहा कि मैंने एक पत्थर को फेंका, एयर थी बीच में, टाइम हमेशा ज़्यादा आएगा. आप एयर को निकाल भी दें, मेजरमेंट में फिर भी रैंडम एरर तो फिर भी रहेगा ही रहेगा. आपने एक निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन रैंडम एरर तो फिर भी उसमें रहेगा. ओके, सो बेटा इन द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रैंडम एरर्स. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द चांस एरर. इट इज बाई डायरेक्शनल. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, then you can discuss to me in your WhatsApp groups. Okay beta, thank you beta.